سے گزر رہی تھی، اسے معلوم تھا نبی نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ، وہ لڑکا کماتا رہا اور بیچارہ دونوں میاں بی بی کھاتے رہے۔ اکیلی لڑکی تھی، باپ آتا تھا دیکھنے کے لیے کہ میری بیٹی آرام سے رہ رہی ہے، ابا جان میں خوش ہوں، آرام سے ہوں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا غور کرو پیارے، اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے، شوہر کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، شوہر کا کام رک جاتا ہے۔ ایک دن ٹینشن میں، دوسرے دن ٹینشن میں، وہ بی بی سمجھ گئی کیا بات ہے، میرا شوہر کیوں پریشان ہے، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ارے یہ پیار ہے، یہ پیار۔ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، بولنے لگی، او میرے سرتاج میں تمہاری شریک حیات ہوں، بولو کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، کیا مجھ سے تم ناراض ہو؟ اللہ اللہ، شوہر جب تک کھانا نہیں کھا لیتا ہے، بیوی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ شوہر کہنے لگا، او میری بیوی پریشان مت ہو، میں کئی دن سے پریشان اس لیے ہوں کہ میرا کام نہیں چل رہا ہے، میرا کام ٹھپ ہو گیا۔ تو اس بیوی کو کیا یاد آیا، وہ بیوی کو یاد کیا آیا، سنو اللہ اللہ، وہ بیوی کو سیدہ فاطمہ یاد آ گئی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا اگر کوئی لڑکی سورہ نور، سورہ طٰہٰ رات کو پڑھ کر کے اگر وہ لڑکی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایسی قبول فرماتا ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی، دعا کرنے لگی، مگر کام رکا ہوا ہے۔ اب ایک دن ایسا آیا، بی بی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، او میری بی بی میرا کام نہیں چل رہا، میری طبیعت چاہ رہی ہے میں کہیں باہر چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی، او میرے سرتاج چلے جاؤ، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جدا کر دوں، مگر چلے جاؤ جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ لڑکے کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آنے لگے، آنکھ میں ہلکا سا پانی چھلکا، آنسو جب آئے تو وہ بی بی کہنے لگی، نہیں میرے سرتاج پریشان مت ہو، کیا بات ہے بولو۔ کہنے لگا کہ تم اکیلی گھر کی ہو، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری بھائی ہے، نہ بہن ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تم چلی جاؤ گی میکے کو، کیونکہ تمہارا بستی کا میکہ ہے، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ ارے وہ اسلام کی شہزادی تھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، میرے سرتاج جاؤ، انشاءاللہ تم پلٹ کے آؤ گے تو میرے جسم پہ داغ نہیں ملے گا۔ ارے میری لاش تو مل سکتی ہے مگر میرے جسم پہ داغ دھبا نہیں ملے گا۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ سعودی عرب اگر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ماں نے آزاد کر دیا، باپ نے آزاد کر دیا، دوسروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، دوسروں کے ساتھ میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہے، ادھر ویڈیو بنا کے بھیجی جا رہی ہے۔ کتنے لڑکوں کے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت کوئی صورت بتاؤ، وہ کمانے کے لیے تمہارے لیے گیا ہے مگر تو ادھر گلچھرے اڑا رہی ہے، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ارے کان کھول کے سن لے، ایسی لڑکی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، مگر یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ رو رو کر کے کہنے لگی، میرے سرتاج تم چلے جاؤ، میرے چلے جاؤ، تم میری لاش تو دیکھ سکتے ہو مگر میں اپنے دامن پہ داغ آنے نہیں دوں گی، میں غریب کی بیوی ہوں مگر تمہارے امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ آج بھی ایسی ایسی بیویاں ہیں۔ اللہ اللہ، سنو پیارے، وہ شوہر چلا جاتا ہے، ادھر کما رہا ہے، ادھر بیوی سورہ واقعہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر دعائیں چل رہی ہے، ادھر اس کا کام چل رہا ہے۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا۔ اب وہ لڑکی کیا کرے، اپنے شوہر کی کیسے خبر لے؟ رات اور رات دعائیں کر رہی ہے، ادھر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آج جو تم محلے میں گھومتی پھرتی ہو، تمہارے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، شوہر سے اجازت نہیں لی ہے، آج تیری برائی میری برائی جو محلے میں کرتی پھر رہی ہو، سنو یہ اسلام کی شہزادی ہے، اس کے باپ
की तबीयत जब खराब होती है, अल्लाह अल्लाह पता चला सब लोग देखने जा रहे हैं, अकेली लड़की है, बेचारी का दिल परेशान हो गया, गरी घर में चक्कर लगा रही है मगर बाप को देखने नहीं जा रही है, इसलिए क्योंकि इसका शौहर नहीं है। इजाजत किससे ले? मोबाइल का भी वक्त नहीं, मोबाइल टेलीफोन का जमाना नहीं, अब इजाजत किससे ले? लड़की गरी घर में रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, मौला मेरे अब्बा को शिफा दे दे। उधर बाप की तबीयत बिगड़ती जा रही है, अब्बा ने छोटे भैया को भेज दिया, जा मेरी बेटी को बुला ला, अपनी बहन को बुला ला, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। अरे ये बाप है बाप, जब बेटी अगर घर से रुखसत होती है तो इस बाप से पूछो, इसकी चीखें निकल जाती हैं, इसकी आंखों में आंसू होते हैं और रो रो करके कहता है, दामाद से कहता है, बेटा मेरे लाल मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत दिला देना। अरे कितनी दुआएं करता है ये बाप, और बेटी भी पलट पलट के देखती है। आज उसके बाबा चारपाई पे पड़े हुए, जा मेरी बेटी को बुला ला। छोटा भैया रोता हुआ गया, कहने लगा, बहन चलो, अब्बा बुला रहे, अब्बा चलो, तबीयत नासाज है, तुम्हें याद कर रहे हैं। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भैया को चिपट गई और कहने लगी, भाई मैं तेरे भाई, मेरे शौहर नहीं है। अरे मैं इजाजत किससे लूं? और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ओ मेरी बहनों, जो तुम दिन भर टंग टंग करती फिरती हो, लंगड़ी घोड़ी की तरह जो नाचती फिरती हो, पूरे मोहल्ले में तुम तेरी मेरी बुराई करती फिरती हो, जरा इस्लाम की शहजादी को जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की रोती रही, का भैया जाओ, मैं यही से दुआ करती हूँ। अब दरवाजे को देखा जा रहा है, मेरी बेटी आती होगी, मेरे दिल का टुकड़ा आता होगा, मेरा जिगर आता होगा, मेरा चांद का टुकड़ा आता होगा, लेकिन बेटी दरवाजे पे नहीं, बेटा आ जाता है। पूछा क्या हुआ? कहा भाई घर में नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। बहन बोली कोई इजाजत देने वाला नहीं, और मैं इजाजत के बगैर घर से कदम निकालने वाली नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब बाप को हिचकियां आने लगी, बाप को सिसकियां आने लगी, बाप का करीब वक्त आ जाता है, बाप को उल्टी सीधी सांसें आने लगी। कह रहे हैं लोगों, मेरी बेटी को बुला दो। माँ जब आई, कहा लो कुछ पी लो, खा लो, कहा नहीं नहीं मेरी बेटी को मुझे दिला दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। उधर बेटी तड़प रही है और इधर बाप तड़प रहा है कि मेरी बेटी को मुझसे मिला दो। आज कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, उधर जो है बाप तड़प रहा है, मेरी बेटी को मिला दो। बाप की सांसें रुकने के करीब है, माँ ने फिर भेज दिया, कहा जो बुला ला, फिर पहुंच जाता, बहन चल, पता नहीं चेहरा देखने मिले या ना मिले, आखिरी बातें तुमसे करना चाहते हैं अब्बा। अल्लाह अल्लाह, अरे ये बेटियां इतना दर्द भी रखती हैं, ये बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती है। तुम घर में रह करके इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हो जितने ही अपने ससुराल से आ जाती है। बेटी के दिल में ज्यादा गम और दर्द दुख होता है, इसका दिल ज्यादा नर्म होता है। लेकिन जरा सुनो, वो बाप कह रहा मेरी बेटी को ला दो। उधर जो थी वो बेटी चटाई पे कुरान खोल के रो रो के तिलावत करके दुआ कर रही है, मौला मौला मेरे अब्बा को शिफा अता फरमा दे, मेरे अब्बा को ठीक कर दे। मगर उधर बाप की सांस निकल जाती है, भाई चला गया, बहन अब भी नहीं गई, बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा गुस्ल दे दो, लोगों ने कहा कफन पहना दो, लोगों ने कहा अरे जनाजा तैयार कर दो, कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरी बेटी आती होगी, बेटी का दीदार करा देना। अरे बाप तो बेटी को नहीं देख पाया, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादी है, आज तुम मोहल्ले में बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। और मेरी बहन मेले ठेले में जाने वाली, आज तुझे तौबा करनी पड़ेगी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम सजाया मनाया, अब जरा इस्लाम की शहजादी को देखो। जब पता चला मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वो लड़की चटाई पे फैल जाती है और कहती है अब्बा तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया था, अब्बा तुम मुझसे बातें किए बगैर दुनिया से चले गए, मौला तूने इम्तिहान ले लिया, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। लड़की घर में रो रही है, अब्बा अब्बा कह रही है। इधर जब दरवाजा
शहजादी है। जरा सुनो आगे, अल्लाह अल्लाह। अब वो जब बेटा आ गया, बेटी नहीं आई, कहा नहला दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। बाप का जनाजा तैयार हो गया। सब देख रहे हैं, जिस बेटी को बाप अगर 3 दिन ना देखता था तो इस बाप को सुकून और चैन नहीं मिलता था। आज वो तड़प तड़प के चला गया। अल्लाह अल्लाह। इधर बाप का जनाजा जब तैयार हुआ, लोगों ने कहा जनाजा लेके चलो। माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा सुनो, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। अरे बाप की ढोली, जनाजे की चारपाई मेरी बेटी के घर जाएगी, क्योंकि फिर हमेशा हमेश के लिए उसके अब्बा जमीन के नीचे चले जाएंगे। अरे मेरे शौहर तो नहीं देख पाया, कम से कम मेरी बेटी अपने अब्बा को देख लेगी, अरे अपनी आंखों को ठंडी कर लेगी। इधर बाप का जनाजा कब्रिस्तान को नहीं, बेटी के घर चला। ओ मेरी बहन, आज तू फैशनीले कपड़े पहन के मेले में जा रही है, आज तू मोबाइल चला रही है, आज तू ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती है कि बयान करने हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन जरा सुनो, वो इस्लाम की शहजादी अल्लाह अल्लाह अपने बाप के लिए दुआएं कर रही थी। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। इधर बाप का जनाजा दरवाजे पे भाई ले आए, चारों भाई ला करके बाप के जनाजे को अंदर रख दिया। बहन, बाप ने नहीं देखा, मगर लो तुम अपने अब्बा को देख लो। बेटी अब्बा के सीने पे गिर गई और रो करके कहने लगी, अब्बा जान मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं शादी नहीं करती। अब्बा जान क्या करूं, मुझसे तो बातें कर लो। अब्बा जान मैं बहुत तड़प रही हूँ, मगर बाप तो दुनिया से जा चुका है। कभी अपने अब्बा के हाथ चूमे, कभी अपने अब्बा के माथा चूमे, कभी अपने अब्बा के पाँवों को चूमे और कहे अब्बा इन हाथों से पहला लुक़मा तुम मुझे खिलाते थे, अगर बाहर से कोई चीज लाते थे तो पहले मेरे हाथ में देते थे। आज मुझसे बात किए बगैर चले गए, अब्बा मुझसे बातें कर लो। अरे बेटी से रुका नहीं जा रहा है। अपने बाप की पेशानी को चूमने के बाद अपने बाप के पाँव को बोसा दे लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, मौला मेरा बाप गुनहगार सही, बदकार सही, ऐ अल्लाह बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर तू तो रहमान और रहीम है। ऐ अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटी दुआ मांगते मांगते जब चक्कर आता है, आंखों के नीचे अंधेरा आता है, वही चारपाई की बराबर में गिर करके बेहोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, भाइयों ने अपनी बहन को लिटा दिया, कपड़ा उड़ा दिया और अब्बा के जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान ले गए। अल्लाह अल्लाह, जब आँख खुली तो बाप का जनाजा नहीं था। अब ये बेटी रात रात अब्बा के लिए दुआएं कर रही है। ओ मेरी बहन, ओ इस्लाम की शहजादी, तू अपने अब्बा की बदनामी मत कर देना, तू अपने भाई की बदनामी मत कर देना, तू अपने चचा खानदान का नाम मत डुबो देना। आज इस्लाम बहुत बदनाम हो रहा है। कितनी लड़कियां मज़ारों पे जाकर नाच रही है, कितनी लड़कियां मज़ारों पे जाकर के खेल रही है, कूद रही है। ओ मेरी बहन, सैयदा फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती उसके कपड़े नहीं होते, उसके ज़ेवरात नहीं होते, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, इज्जत। ओ मेरी बहन, तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे, तू इस्लाम की शहजादी बन जा। आज ये जलसे से तू सबक लेके चला जा, चली जा, ताकि दुनिया वाले कहे कि तू घोसीपुरा की बच्ची, हमने उसका चेहरा का चेहरा पल्लू तक नहीं देखा है। वो इस्लाम की शहजादी रात रात दुआ कर रही है, कुरान दुआ कर रही है, कह रही है अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में और उम्र में बरकतें देना और मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमा देना। अरे ये बेटी बेचारी कभी एक लुक़मा खा लेती है, कभी 2 लुक़मे खा लेती है, सूख के कांटा हो गई है अब्बा की मोहब्बत में, रो रो करके आंखें लाल हो जाती है। इसको न खाना लगता न पीना, सुरख सफेद थी मगर बिल्कुल सूख चुकी है।
और शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या मामला है, क्योंकि मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, वो उसे कोई पता नहीं था। उधर शौहर अब चलने का वक्त हुआ, शौहर ने बीबी के लिए तोहफे तोहफे लिए। उसे मालूम था मेरी बीबी को क्या क्या पसंद है, हर शौहर को पता होता है। उसने अपनी बीबी के लिए जो भी तोहफे तोहफे लिए, उधर बीबी के बेचारे के हालात बुरे हो चुके थे। सुरख सफेद थी, अब तो सूख के कांटा हो गई। ये शौहर घर में पहुंचा, इसने आवाज दी, ओ कनीज़े फातिमा। जब देखा अल्लाह अल्लाह शौहर की आवाज सुनी तो बीबी का दिल धड़कने लगा। मेरा सरताज आ गया, मेरा शौहर आ गया, मेरी जिंदगी में शिरकत करने वाला आ गया, मेरे नाज नखरे उठाने वाला आ गया। अरे वो आ गया जिसके दम से मैं घर में आई थी, मेरे जिंदगी में बहारे देने वाला आ गया। अल्लाह अल्लाह। अब बीवी ने जब देखा अपने शौहर को देखते ही आंखों में आंसू हो गए। बीबी आगे बढ़ी, शौहर के गले में हाथ डाल के चिपट गई। शौहर बोला देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ, देखो जरा देखो। बीबी कहने लगी मेरे सरताज मेरी दुनिया लुट चुकी है, मेरे सरताज मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मेरे सरताज मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो जीते जी खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह। बीबी शौहर के गले में, अरे वो बहारे देने वाला था, वो खुशियों में खेलती थी, आज शौहर के गले से लिपट कर रो रही है। बीबी को चक्कर आया, गिरने वाली थी। शौहर ने फौरन सब चीजें छोड़ के बीबी को पकड़ लिया और सीने से लगा करके कहा बोलो ओ मेरी बोलो शरीक हयात बोलो। अरे कौन है, किसने तुम्हारे ऊपर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, किसने तुम पे जुल्म किया है बोलो। अरे क्या मामला, कौन तुम्हारे घर में आया था। बीबी कहने लगी मेरे सरताज जैसे आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है। कहा जिस अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दिया था और आंखों में आंसू थे और कहा था बेटा ये मेरी जान है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरा जिगर है, ये मेरे घर का नूर है, मैं तुझे सौंप रहा हूँ, ये तेरी अमानत है। वही अब्बा दुनिया से चले गए, वो अब्बा को दुनिया से चले गए और अब्बा मुझे याद करते रहे, मगर मैं अब्बा से तो बातें नहीं कर पाई, मैं अब्बा को देखने नहीं गई। जब इतना देखा तो वो कहने लगा पगली तुझे जाना चाहिए, चलो तुमने क्या हाल बना लिया। वो लड़की को उसने बिठाला, पानी पिलाया, पूरी बात बताओ, पूरी बात बताई। अब दोनों मियाँ बीवी चले कि चलो अभी चलते हैं। ओ मेरी बहन आज तू अपने शौहर से लड़ती है, बात बात पे झगड़ा करती है, मैं के जाने के लिए अगर देर हो जाए तो तेरा जुग्राफिया बिगड़ जाता है, तेरे मन के अगर कपड़े ना बने, तेरा शौहर तुझसे बहुत प्यार करता है, कुछ तो ये अच्छा चाहता होगा, मगर आज तू बदनाम कर देती है। ये इस्लामी शहजादी क्या बोली, नहीं मेरे सरताज अभी रुक के चलेंगे, तुम इतनी दूर से सफर में आए हो, कुछ खाना खा लो, अरे पानी पी लो। आज भी अपने शौहर का इतना ख्याल रख रही है। कहा तुम खाना पानी देख रही हो, मेरी तो हालत खराब हो गई, अभी चलो। कहा मेरे सरताज मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब मेरा दिल में दिल पड़ गया, तुम आ गए हो, मैंने कुछ नहीं खाया मेरे सरताज, तुम्हारे साथ में मैं भी खा लूंगी। अल्लाह अल्लाह। उसने रोक लिया शौहर को। दोनों मियाँ बीबी ने क्या खाना खाया होगा आप समझ सकते हो। दोनों मियाँ बीबी ने जैसे भी खाया और अपने शौहर को लेके पहुंच जाती है। माँ को देखो, रुका नहीं गया, माँ के कदमों पे जाके गिर गई। माँ मुझे माफ कर देना, माँ माँ मुझे माफ कर देना माँ। उसी अब्बा ने कहा था बेटी सबसे ज्यादा हक तुझ पे शौहर का है, तेरे माँ बाप से ज्यादा हक शौहर का है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकालना। उन्हीं अब्बा ने कहा था अगर मैं मरता भी हूँ शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। माँ मुझे वही अब्बा की बातें याद रह गई, नबी का फरमान था उस पे अमल करती रही। कहा माँ माफ कर दो। कहा
نے شریعت مصطفیٰ کو پامال نہیں بلکہ اس پر عمل کیا ہے اور باپ کی باتوں پر عمل کیا ہے. اللہ اللہ، اتنے میں محلے کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی دیکھو کیسی لڑکی ہے، کتنی بیکار لڑکی ہے کہ اس نے اپنے ابا کے جنازے میں شرکت نہیں کری. ارے دیکھو باپ نے کیسے پالا تھا مگر یہ ابا کو دیکھنے نہیں آئی. اتنے میں میرے نبی بھی آ جاتے ہیں، آقا آ جاتے ہیں، اور جب آقا آئے تو کہا خبردار خبردار، ارے سنو اس لڑکی کو مت کہو، اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے بھائیوں نے نہیں کیا، رشتہ داروں نے نہیں کیا، محلے والوں نے نہیں کیا. سب لوگ چکر میں پڑ گئے. کیا کام کیا ہے؟ کہا اس کے باپ پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کا باپ اتنا گناہگار تھا کہ جہنم میں جاتا، مگر بیٹی کے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بنا پر بیٹی کی دعا سے باپ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اس کے آنسوؤں سے مولا نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے باپ کو جنتی بنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فرمان مصطفیٰ، شان